आई फाइंड दिस इम्पॉसिबल टू बिलीव कि तुमने नहीं सुना होगा कि नज़र लग जाएगी, या फिर तुम्हें नहीं पता कि नज़र क्या होती है। ऑलमोस्ट सबने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होता है कि लो की रहो, छुपा के रखो, बताओ मत, गेट कीप करो, नज़र लग जाएगी। एंड आई फील हम सब बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से, नज़र लगने से, कि जिंक्स ना हो जाए, कि हम कहीं पहले बोल दे फिर खराब हो जाए, टाइप ऑफ स्टफ। एंड आई डोंट थिंक कि इतना डरने की ज़रूरत है। नाउ, ये थोड़े सेंसिटिव बिलीव्स होते हैं और इनमें बहुत बार रीजनिंग नहीं खोजनी चाहिए, लेकिन इफ यू फाइंड योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली बींग स्ट्रेस्ड, मान लो तुमने कुछ गोल सेट करा है कि तुम्हें एक कोई भी गोल अचीव करना है तुम्हारी लाइफ में, कैन बी वट एवर, और अब जब तुम उस गोल को अचीव करने जा रहे हो तो तुम्हारे माइंड में कांस्टेंट फियर है कि नजर ना लग जाए, जिंक्स ना हो जाए, छुपाऊंगा, बताऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। तुम पहली बात तो अपना पोटेंशियल लिमिट कर रहे हो, दूसरी बात तुम अपने आप को फालतू स्ट्रेस दे रहे हो जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है, जो कि बस तुम्हें हार्म ही करेगा। स्ट्रेस कभी अच्छा तो हो नहीं सकता। हो सकता है, अगेन सॉरी, आई एम रॉन्ग हियर, एंड स्ट्रेस अच्छा भी हो सकता है, बट इस केस में तो, नजर के केस में तो अच्छा नहीं है स्ट्रेस। So today I hope कि with this video I'm able to give you this perspective, and it might help you future में, cause again if you ever decide to do something, to build something, to work on something, then times might get tough or hard for you, and उस टाइम पर this opinion, this might help you to stay a bit at ease। एटलीस्ट तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि तुम्हें नजर लग जाएगी या फिर तुम्हारी प्रोग्रेस, तुम्हारा काम जिंक्स हो जाएगा। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। Nazar is real, but nobody is jinxing you except yourself. What Nazar actually is. In India, we grow up hearing this: keep your progress quiet. Do not show people what you are building. Do not tell anyone your plans because Nazar lag jayegi. Someone will jinx it and everything will fall apart. And most people either believe it completely or dismiss it as superstition. I think both of those people are wrong. Nazar is real, but the mechanism has nothing to do with other people's eyes or envy or evil energy. It is something happening entirely inside your own head. The science nobody told you about. There is a psychologist named Peter, and I can be wrong at the pronunciation, okay, but I'll try. So let's take a wild guess कि T silent होगा, so it should be Peter Gollwitzer, not Gollwitzer, Gollwitzer, and बाद में check करा जाएगा। Peter Gollwitzer, who studied exactly this. What happens when you tell people about your goals before you achieve them? What he found is that when you announce a goal and someone acknowledges it, your brain registers that social recognition as a form of progress. It gets a premature sense of completion. Part of the reward gets collected before any of the work has been done. And once your brain has taken that dopamine hit, the drive to actually do the work quietly decreases. Not dramatically, not all at once, just enough to cost you. You announce the goal, your brain felt like it already happened. And now doing the actual work feels harder than it should because the excitement has already been spent. That is nazar, not someone's evil eye, your own premature dopamine। तो हम सबको पता है कि premature ejaculation एक बहुत ही रियल चीज है, शायद तुम इसे सफर भी कर रहे हो इस टाइम पे, if you are a male। Not the topic of discussion, we are talking about premature dopamine here। अब होता क्या है, लेट मी अगेन गेट इनटू दिस वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट जो कि मैं बहुत बार प्रीच करता हूं, कि कैसे हम इंसान बने हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। मतलब हम बहुत लंबे टाइम तक काम करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा, उतने लंबे लेबर या फिर एक्शन या कर्म के बाद उस लेबर को हम एंजॉय करते हैं और उससे हमें मिलता है डोपामीन, जो कि डिलेड लंबे टाइम पीरियड के लिए मिलता है, एंड हम उसी के लिए हार्ड वायर्ड है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिले हुए डोपामीन के लिए नहीं बने हैं। तो होता क्या है, लेट मी पुट दिस मोर सिंपलर। तुम्हारा एक गोल है, तुम्हें बनानी है बॉडी 6 महीने में, तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, तो तुम्हें पढ़ना है दिन के 12 घंटे, या फिर तुम्हें रोज वीडियो अपलोड करनी है बिकॉज मे बी ऑन बी एन इन्फ्लुएंसर, तुम्हें रोज कंटेंट पीसेस अपलोड करने हैं, कुछ भी गोल हो सकता है तुम्हारा पर्सनल वट एवर। अब होता क्या है कि तुम जाते हो उसको लेकर के दूसरे लोगों के पास, तुम इसको अनाउंस करते हो, मम्मी पापा भाई बहन बंदी यार दोस्त वट। तो उसके बाद अब इससे क्या हुआ, तुमने अनाउंस करा, ऑल्सो तुम्हारे माइंड में रोड मैप भी क्लियर है, तुम्हें दिख रहा है कि 6 महीने बाद बॉडी बन जाएगी, मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका होगा, तुम उसको विजुअलाइज कर सकते हो अपने माइंड में, राइट। विजुअलाइज भी कर लिया, अनाउंसमेंट भी कर दी, और ऑल्सो एक वो रोड मैप बना लिया कि रोज 12 घंटे तो पढ़ ही दूंगा, कल शो अप करूंगा और कल ही 12 घंटे पढ़ दूंगा, कल शो अप करूंगा और कल ही बहुत तगड़ा वर्कआउट कर दूंगा। एंड होता क्या है, जब तुम एक्चुअली में डे 1 पे उतरते हो काम करने के लिए, तो यू रियलाइज कि यू सक एट इट बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल एंड यू विल ओनली इवेंचुअली गेट बेटर एट एनीथिंग यू डू, लेकिन स्टार्टिंग में यू सक एट इट। हम सब जो भी चीज नहीं चालू करते उसमें हम खराब ही होते हैं,
तो सबसे पहली बात तो अब यहाँ पर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी टॉप टियर शिट कि मैं तो ऐसा ही कर दूंगा, एंड रियलिटी क्या निकली, काफी नीचे उससे। तो तुम डिसअपॉइंट हो गए पहली बात उस पर, ठीक है। सेकंड क्या हुआ तुम्हारे साथ, सेकंड तुम्हारे साथ ये हुआ कि तुमने जो तारीफ तुम्हें मिलती काम करके लंबे डिलेड टाइम के लिए, उसके बाद जो रिजल्ट आता तुम उस रिजल्ट को दिखाते, बिना दिखाए भी जब रिजल्ट आता है ना, अगर इस वीडियो पे व्यूज आ गए तो मुझे दिखाने की नीड पड़ेगी कि व्यूज आ गए, ऑटोमेटिकली प्रेजेस मिलेंगी मेरे को। तो तुम अपना जब रिजल्ट दिखाओगे दूसरों को, तो उससे जो तुम्हें तारीफें मिलती ना, वो तुम्हें पहले मिल जाएंगी लोगों को बता करके कि अब तो मैं ये करने वाला हूं, अब तो मैं ये कर दूंगा। एंड यूजुअली स्टार्टिंग में ना पीपल आर वेरी सपोर्टिव, कॉज सोचने में क्या लगता है, तुमने उनको कोई चीज सोचवाई, इमेजिन करवाई, उन्होंने सोच लिया एंड उनको भी सोच के अच्छा लगा, तो दे प्रेज यू। और मे बी तुम्हारी हाँ में हाँ मिला देते हैं, तुम्हें थोड़ा सा फ्यूल कर देते हैं, मे बी दैट दैट इज व्हाट दे डू, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन वही दिक्कत आ गई, डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली, कि तुमने तो तुरंत ही ले लिया ना ग्रेटिफिकेशन, तुम उसके लिए बने नहीं उस डोपामीन के लिए, तुम तो वो प्री मेच्योर डोपामीन है विदाउट डूइंग द एक्चुअल वर्क। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट थिंग। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ यहाँ पहले ही बोल दिया, बट या स्टिल विल गो थ्रू दिस, भाई मेहनत करते रखने में इसको। हाउ इट एक्चुअली प्लेज आउट, यू डिसाइड, लेट मी चेक वेदर दिस इज रिकॉर्डिंग और नॉट। मैं ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन थी। Yeah, okay, it is on. How it actually plays out. You decide you are going to start going to the gym every day, or upload videos every day, or study 12 hours a day, or fix your diet completely. And before you even begin, you tell your friends, you tell your family, maybe you post about it, and in that moment you feel amazing. You can already see the version of yourself 6 months from now. The results feel almost real. That feeling is the dopamine, and you just spent it. Now day one arrives, you are a beginner. Everything is hard, everything is harder than you imagined. You make mistakes, you are inconsistent, progress is slow and invisible. But you have already told everyone what you were going to do, and they remember. Now, every time you fall short of what you announced, you feel it. The gap between what you said and what you are actually doing becomes a weight you carry into every session. And that weight is what eventually makes people quit. Not Nazar, not someone jinxing them. The distance between the announcement and the reality. Another thing is कि ना जब तुम बताते हो तो तुम ऑलरेडी उनकी भी टेंशन माइंड में लेके बैठे हो कि अब तो भाई वो लोग भी देख रहे होंगे, तो वो एक और अलग टेंशन वाली तो तुम्हारे माइंड में रहती है यार। अगर तुम कल को फेल होगे तो वो लोग देखेंगे। ऑल्दो आई टॉक अबाउट इट, अभी नीचे ही बात करी है मैंने इसके बारे में, बट हाँ, द डबल डैमेज। तो ये एक तरीके का डबल डैमेज, अगर तुम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो तो इंस्टेड ऑफ गेट कीपिंग व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू आर डूइंग, और मे बी व्हाट यू हैव। मेरे को खराब बताऊं क्या लगता है, पीपल हु गेट कीप व्हाट दे हैव डन। द वेरी रीजन मैं इस टॉपिक पे तुम्हें लगा कि अरे क्या है रैंच नजर मानते ही तो है, बिकॉज आई काइंड ऑफ आस्क्ड समवन ऑन इट, एंड उनका काफी क्लियर आंसर था मुझे कि या तो लोग इसमें मानते हैं या नो वन गिव्स मच फक अबाउट इट, नो वन गिव्स मच फक्स अबाउट इट। हाँ, यही था उसका आंसर। तो एंड विच इज वेरी ट्रू, इवन आई नेवर गिव, बट हुआ क्या कि आई हैव मेट सो मेनी पीपल जो कि ना बहुत गेट कीप करते हैं अबाउट व्हाट दे हैव डन। तुम भी मिलोगे, बताऊं कैसे एग्जांपल। वो बच्चा जो कि सब कुछ पढ़ के आता है, सबको पता है कि ये टॉप करेगा, बट वो कॉन्स्टेंटली बोल रहा है तो कुछ पढ़ के नहीं आया। मेरी बहुत किलस्ती है ऐसे लोगों से। मेरे को पता है कि तू टॉप करने वाला है, मेरे को पता है कि तू अच्छा है पढ़ाई में, एंड मेरे को पता है कि तू पढ़ के भी आया है, देन व्हाई आर यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड एक्टिंग, या फिर पता नहीं गेट कीप कर रहा है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा एंड ऑल दी। मेरे को बहुत किलसन मचती है इन लोगों से। तो दैट वाज द रीजन व्हाई आई वेंट डाउन इनटू दिस रैबिट होल थिंग। एंड व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ, और इन डेप्थ सोचना इस बारे में, इतना डेप्थ में गया, तब मुझे लगा कि यार ये तो हर चीज में ये अप्लाई होता है, एंड एंड ऑफ द डे इट इज अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव टू गिव योरसेल्फ कोपिंग मैकेनिज्म। इफ यू फील कोपिंग नहीं, आई फील ये सच है। और हमारी जो हम बाकी चीजें मानते हैं ना, वो एक काइंड ऑफ डुलुलू है। डिलुलू कैसे गे वर्ड्स है भाई, ये पता नहीं क्यों यूज कर रहा हूं, बट हाँ। तो ये कोपिंग नहीं है, ये तो काफी रियलिस्टिक शिट है। कोपिंग तो वही है ना कि तुम बिना किसी फैक्ट्स, बिना स्टेटमेंट के बस तुम जस्टिफाई कर दे रहे हो सुपरस्टिशन को कि नजर लग जाएगी टाइप ऑफ स्टफ। द डबल डैमेज, announcing kills you twice. First, it steals your dopamine before you earn it, as I said, delayed gratification versus instant gratification, हम जिसके लिए बने ही नहीं है। Your brain gets the reward without the work, as I said. Second, it creates an audience for your potential failure, and the fear of that audience watching you fall short becomes its own paralysis on top of everything else. So you are running on less motivation and more fear simultaneously, and you call it nazar. एंड ऑब्वियस सी बात है ना, जब एक तो तुम्हारा मोटिवेशन कम है, बिकॉज
it is very difficult to show up every single day into or towards something which humbles you. जो चीज तुम्हें एकदम हम्बल कर देगी कि हाँ भाई तू कोई वो नहीं है, टॉप डॉग नहीं है, तू कोई हॉट शॉट नहीं है, अगर कोई तुम्हें फील करा रहा है कि तुम कम हो, यू आर लेस एंड यू नीड टू गेट बेटर, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो अप। और उसके ऊपर से एक टेंशन और पार ली कि भाई लोग भी देख रहे हैं, अब तो अनाउंसमेंट भी कर दिया तो करना ही पड़ेगा। तो दैट इज वेरी वियर्ड शिट, बहुत ही खराब कंडीशन होती है एंड नॉट एवरीबडी कैन हैंडल दैट प्रेशर। बट लो की एक्चुअली मीन्स जो गेट कीप लो की करना बोल लो की रहना गेट कीप करना बोलते हैं वो, उसका मतलब staying low key is not about hiding from people's evil energy. It is about protecting your own internal process from premature completion. The work needs to feel unfinished. The goal needs to still feel far away. That tension is what keeps you moving. The moment you announce it and people acknowledge it, some of that tension releases, and you need that tension. It is the fuel. So stay quiet, not because someone will jinx you, but because the announcement itself is the jinx. Let the results speak. Let people find out when it is already done. Let them see the thing you built instead of hearing about the thing you plan to build. नजर लग गई? नो, तूने खुद लगा ली। वेरी कॉर्नी स्टेटमेंट लास्ट वाली, बट हाँ। तो व्हाट डिड आई से हियर? आई एम सेइंग हाँ कि अपनी ना मेंटल स्टेट को whenever you decide कि you are going to go out and achieve a certain goal of yours, उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने आप को ना मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा फर्म रखो, बिकॉज जब दिन निकलते हैं ना, यू विल नेवर सी रिजल्ट्स ऑन डे वन एंड इट बिकम्स हार्ड every single day when you show up and you don't see result. Not everybody is capable to show up still. बहुत मुश्किल होता है। एंड अब एक तो वैसे ही तुम डिफिकल्ट है शो अप करना, रिजल्ट्स दिख नहीं रहे, उसके ऊपर से तुम 10 टेंशन हो रहे हो कि अब तो लोग भी देखेंगे, क्या पता मुझे नजर लग गई है, क्या पता ये है वो है। सो आई होप विद दिस वीडियो मैं तुम्हारा वो डर कम कर पाया हूँ, तुम्हारे अंदर अगर वो डाउट है तो मैं शायद से उसको रिड्यूस कर पाया हूँ, ताकि तुम थोड़ा फ्री माइंड के साथ जो भी तुम्हारा गोल है उसको परस्यू कर पाओ, एंड ज्यादा इतना ना सोचो, इतना ना गेट कीप करो कि नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। इफ यू स्टिल वांट टू बिलीव, यू डू यू, आई एम नोबडी टू से एनीथिंग। बिकॉज ना आई फील यार ये थोड़ी होते हैं सेंसिटिव बिलीव्स। रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स तो ऑल तो नहीं, बिकॉज भाई आई एम अ फकिंग वोटर एंड हैव द राइट। इफ आई एज एन एडल्ट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, छोड़ो। बट हाँ, रिलीजन हो गया और ये वाली चीज होगी, सुपरस्टिशंस वगैरह हो गए, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लोगों की बिलीव्स होते हैं एंड यू शुड नेवर रियली गिव अ रीजन टू इट। रीजनिंग नहीं देनी चाहिए। स्पेसिफिकली मैं थर्ड पर्सन होकर के अगर तुम मुझे अपना दुखड़ा सुनाओगे कि ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, तो इसलिए आई बिलीव नजर असली है, और उसको सुन करके इफ आई एज अ थर्ड पर्सन आई वॉज नॉट इन योर शूज, मैंने वो सब फेस नहीं करा, फील नहीं करा, मैंने बस बैठ के यहाँ पे सुना है। सो आई डोंट थिंक आई हैव द राइट, अगर मैं तुमसे सिंपथाइज या एम्पथाइज नहीं कर सकता तो मैं तुम्हें बैठ के रीजनिंग दूं कि क्यों, अरे नहीं नजर नहीं भाई, वो तेरे माइंड में डिलेड ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट, नो। बट इफ यू आर इफ यू प्लान ऑन अचीविंग समथिंग बिग, अगर तुम अभी से कुछ काम करना चाह रहे हो, एंड काम डिफिकल्ट होता है भाई करना किसी भी चीज में, तो आई होप दिस gives you a peace of mind, maybe peace of mind कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, this this helps you, this helps you. So that is it for this one, and I'll see you in the next one. Peace.